Good morning, dear students. I am Dr. Indermal Goyal. Today, in this video, we will discuss some important aspects related to issue of shares by a public company. There are two types of company: public company and private company. Private company is that company which is privately managed, in which entire amount of share capital is invested by the owner, by a limited group of people. So they can establish and operate only a small scale or medium scale business. But if a particular business require 500 crore, 2000 crore, 10,000 crore rupees as its capital, if the process of operating a particular business is risky and which require huge financial outlay or which has a long gestation period, in such a case it is not possible for a small group of people to provide required quantum of financial resources. So the limitations of public company directed the way for establishment and operation of public company or a large scale company. Financial resources of a public company are wide and varied, as we have discussed in our previous video related to sources of finance for a public company. Now we will discuss about issue of shares, and there are so many points related to issue of share which should be in our mind. Then only we can prepare required journal entries regarding issue of equity share, preference share, and presentation of share capital in the balance sheet of the company. So, first of all, we will discuss about types of shares. Types of shares. अंशों के प्रकार. There are two types of shares. Number one is equity shares, and number two is preference share. Equity share are those shares which are the part of total equity share capital of the company. Equity shareholders are considered as the real owner of the company, and if a company has earned huge amount of profit, it will be distributed among all equity shareholders. And if a company has sustained the loss, the total loss will also be ultimately borne by the equity shareholder. तो जो समता अंश बोलते हैं, इक्विटी शेयर को हिंदी में बोलते हैं समता अंश, समता अंश. तो ऐसे अंशधारी जो किसी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जिन्हें कंपनी के प्रबंध और संचालन से संबंधित निर्णय लेने की, कंपनी की वार्षिक साधारण सभाओं में, मीटिंग में भाग लेने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होता है, संचालकों की नियुक्ति करना, अंकेक्षक की नियुक्ति करना, यानी कि सारे जो वाइटल डिसीजन एक कंपनी के बारे में लिए जाते हैं, पब्लिक कंपनी में जो लिए जाते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में लिए जाते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी. क्योंकि एक कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी है, वो सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर को अफेक्ट करती है. तो दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन our previous video, that preference shares are those shares the holder of which have two preferential right over the equity shares. First right to get dividend prior to equity shareholder during the lifetime of the company, and second है right to get
रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो पूर्व अधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर को हिंदी में बोलते हैं अधिमान अंश या पूर्व अधिकारी अंश। ऐसे अंशधारी जिनको कि समता अंशधारियों की तुलना में दो प्राथमिकता के आधार पर अधिकार प्राप्त है, और उसमें पहला है कंपनी के जीवन काल में लाभांश पहले लेने का अधिकार। जब भी कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी तो उसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। और दूसरा होता है कि राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी के समापन के समय समता अंशधारियों की तुलना में पहले पैसे लेने का अधिकार। ठीक है। इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती, कोई मेंशन नहीं होती है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड है ना, वो प्री डिटर्मिनेट होती है एंड विच इज मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट। क्योंकि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो जो लोग कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करते हैं उनको जब शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के द्वारा उस व्यक्ति को शेयर होल्डर बनने पर एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, अंशधारी का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि जिस व्यक्ति का नाम इस सर्टिफिकेट में लिखा है वो कंपनी का अंशधारी है। तो इक्विटी शेयर 10 रुपये मूल्य का, 100 रुपये मूल्य का, 1000 रुपये मूल्य का हो सकता है। ऐसी प्रेफरेंस शेयर भी अलग अलग एक स्पेसिफिक डिनोमिनेशन के होते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू के होते हैं, उन पे रेट ऑफ डिविडेंड भी लिखी हुई होती है। तो ये दो तरह के शेयर हैं जिनका हम इशू की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इससे रिलेटेड एस्पेक्ट है प्राइस ऑफ शेयर, अंशों का मूल्य। तो प्राइस ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्य। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस, the meaning of which is also different, and being a student of the commerce we must have knowledge about all kind of price. So we will now discuss about various types of price. Number 1, marked price, MARKED, marked price, जिसे हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, लिखित मूल्य या फेस वैल्यू। शेयर इज ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी इन द नेम ऑफ द शेयर होल्डर। तो वो शेयर सर्टिफिकेट में ना कंपनी के कितने रुपए वाले कितने शेयर इस व्यक्ति के पास है, ये प्राइस, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य, वो शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड होता है। द प्राइस विच इज मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्क्ड प्राइस बिकॉज इट इज मार्क्ड, लिखी भी होती है शेयर सर्टिफिकेट पे। तो ऐसे लिखा होता है 100 शेयर ऑफ 10 इंच, तो 1000 का होगा एक शेयर, और जो लिखित में आपको दिया था वो शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है। एंड शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कंपनी, by the directors of the company under the common seal of the company, which establish the relation between the company and the shareholder. You know, company is also an artificial person created by law. That is why share certificate enable a shareholder to become and to prove his ownership, his partial ownership in that company. तो मार्क प्राइस या फेस वैल्यू यानी कि वह मूल्य जो शेयर सर्टिफिकेट में अंकित होता है उसके फेस पर लिखा हुआ होता है, फेस वैल्यू। नंबर 2, मार्केट प्राइस। पहला है मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड प्राइस जो लिखित है, और दूसरा है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। As you know that shares of a public company are listed in a recognized stock exchange and they are purchased and sold in stock exchange market through the members and through the brokers of the stock exchange.
If you want to purchase the share of a particular established renowned company, you can purchase it from the stock exchange market through the members of the company and through the brokers of the stock exchange market. So market price मतलब बाजार मूल्य, as the name indicate, the price at which the share of a public company can be purchased and sold at a particular point of time in a stock exchange market is known as market price. बाजार मूल्य, जिस मूल्य पर किसी कंपनी के अंश खरीदे, एक समय विशेष पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं तो मार्केट प्राइस कहलाते हैं। और ये जो खरीदना और बेचना स्टॉक एक्सचेंज या मेंबर्स के थ्रू होता है। और जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उस कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। उस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू खरीदे जाते हैं। और मेंबर्स के जो ब्रोकर्स होते हैं वो पूरे इंडिया में अपना ऑफिस के साथ होते हैं। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ये था मार्केट प्राइस, उसके बाद हो गया मार्केट प्राइस एंड नाउ नंबर 3 इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। It refers to that amount which we have actually paid for purchasing the share of a company. Share purchased in a company are our assets, and assets are recorded at the cost price. And when you want to purchase the share, you have to pay the price for that share, and you have to pay commission to the broker for successful completion of the transaction related to purchase of share on your behalf. अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो जो ब्रोकर के माध्यम से खरीदे जाते हैं, मेंबर के माध्यम से खरीदे जाते हैं, उसे कमीशन भी देना पड़ेगा। और जब आपने शेयर खरीदा तो उस दिन उस समय जो मार्केट प्राइस होती है उस प्राइस पे आपने खरीदा। तो हाउ मच यू हैव एक्चुअली पेड फॉर परचेजिंग एंड प्रोक्योरिंग द शेयर to get the share transferred in your demat account is called as the cost price. तो ये हो गया लागत मूल्य जो वास्तव में आपने चुकाया है। फोर्थ वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, INTRINSIC, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि किसी अंश का संपत्ति आधारित मूल्य। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो जनरली उस कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी है, उसमें से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी जितनी भी है घटा दो, तो जो बाद में वैल्यू बची वो हमारी कंपनी की नेटवर्थ कहलाती है। उस नेटवर्थ में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी ने इशू कर रखे हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। तो इससे जो मूल्य प्राप्त होता है वो उस कंपनी के शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है, संपत्ति आधारित मूल्य कहलाता है। तो ये हमारे कंपनी का संपत्ति आधारित मूल्य हो जाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं या किसी कंपनी का बिजनेस को खरीदना चाहते हैं या आप एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं कंपनी के शेयर खरीदे या नहीं खरीदे, तो उस समय इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो ज्यादा वैल्यू रखता है। तो संपत्ति आधारित मूल्य ये हो गए हमारे प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। हाउ टू बिकम शेयर होल्डर ऑफ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो व्हाट आर द वेरियस अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ
purchasing and procuring the share and getting the share registered in your name or to become the registered member of a public company. तो आप किसी कंपनी के अंशधारी किस तरह से बन सकते हैं? नंबर 1, through application and allotment. Through application and allotment. यदि कोई कंपनी नई बनाई जा रही है और वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू कर रही है और उसने अपना प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करा है और आप अपना सरप्लस फंड है, पैसा है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देन यू अप्लाई इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. क्योंकि व्हेन ए कंपनी इशू शेयर देन इट इशू ए प्रोस्पेक्टस. Prospectus is a general invitation to the public as a whole. Prospectus contain all the information about the company, about the history of the company and about the management members of the company, about the object and types of capital of the company. यानी कि एक कंपनी के प्रविवरण में, प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी सूचनाएं होती है. उसको पढ़कर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि कंपनी कौन बनाने वाले हैं, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी का कैपिटल कितनी होगी, है ना, कंपनी का जो प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा, कंपनी का फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस है, या हमारे डेली लाइफ में कंपनी के प्रोडक्ट की वर्किंग की क्या यूटिलिटी होगी. उसके अकॉर्डिंग आप ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो whenever a new company issue its share for the first time in the market and issue a prospectus, you can go through the prospectus and then you can decide. If you want to purchase, you have to apply share in the banker of the company. अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस के साथ में ये ना एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ होता है, वो आप उस कंपनी का जो बैंकर्स है, जो कंपनी की बैंक है, उस बैंक में वो सारे प्रोस्पेक्टस मिल जाते हैं. और आप जहाँ जाएंगे, अगर आप ऐसा देखें तो वो शेयर को, प्रोस्पेक्टस को पढ़े, उसके साथ एप्लीकेशन लगी हुई है, वो फॉर्म आप पूरा भरें और अपना चेक लगा दें या जो भी आपने पेमेंट करने का मोड आपने ऑप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आप जब अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन मनी के साथ साथ आपको शेयर की एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी. तो जब आप शेयर के लिए खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं तो शेयर की एप्लीकेशन के साथ में आपको एप्लीकेशन मनी डालनी पड़ेगी. और वो एप्लीकेशन मनी कंपनी का पूरा फेस वैल्यू ऑफ शेयर भी हो सकता है या एक 20% 30% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वन शेयर हो सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका एप्लीकेशन दे सकते हैं. बट यू नो, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर परचेजिंग द शेयर ऑफ ए कंपनी, देन इट इज नॉट ए गारंटी दैट यू विल बी अलॉटेड शेयर. क्योंकि कंपनी के शेयर का एप्लीकेशन कितनी आती है, उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी का शेयर है ना, वो अलॉटमेंट होता है. ओवर सब्सिशन होता है कि अंडर सब्सिशन होता है. अगर आपका कंपनी का शेयर कम अप्लाइड हुआ है तो हो सकता है आपको शेयर मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी किसी कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब हो जाते हैं, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाती है, तो फिर सारे एप्लीकेंट को शेयर नहीं मिलते हैं. कुछ सेलेक्टेड लोगों को रेंडमली है ना वो अलॉटमेंट होता है. तो ये पहला मेथड है, थ्रू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. उसके बाद नंबर 2, थ्रू सेल ऑफ एसेट्स टू द कंपनी. थ्रू सेल ऑफ एसेट्स टू कंपनी. अगर आपको कोई प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एपरेटस में डील करते हैं और कोई नई कंपनी बन रही है और आपको अपनी कंपनी के लिए ऐसे एसेट्स खरीदने की जरूरत है, तो कंपनी के डायरेक्टर आपसे बोलेंगे कि आप हमें ये मशीन है, ये इक्विपमेंट दे दो और इसके बदले में जितना प्राइस होती है उसका 50% या 100% आप कंपनी के शेयर खरीद लीजिए. और ऐसा करके आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे. क्योंकि वैसे भी कोई व्यक्ति अपना प्रॉफिट होता है, सरप्लस मनी होती है, वो इन्वेस्ट करता है. तो इट इज ए डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी टू द वेंडर ऑफ द एसेट्स टू इन्वेस्ट सरप्लस मनी इनटू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. इससे क्या होगा, जो
एसेट्स का वेंडर था व्यक्ति ना, वो कंपनी का भी पार्शियल ओनर बन जाएगा। जब वो शेयर होल्डर बनेगा तो कंपनी की मीटिंग में भी उसको राइट मिल जाएगा, कंपनी की डिसीजन मेकिंग में उसको राइट मिल जाएगा। तो एक तरह से उसका स्वतः ही व्यापार का विस्तार हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इट इज वन ऑफ द वे थ्रू सेल ऑफ एसेट्स टू द कंपनी। अगर आप कोई एसेट्स के वेंडर है जो काम में, जैसे कंप्यूटर है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, फर्नीचर है, या बड़ी आप कोई प्लांट मशीन भी बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एसेट्स बेचिए कंपनी को, और कंपनी आपको पैसा नहीं देके उसके मूल्य के बराबर आपको शेयर दे देगी और आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो नंबर 3, थ्रू रेंडरिंग सर्विसेज, थ्रू रेंडरिंग सर्विसेज। जब भी किसी कंपनी की स्थापना होती है और कंपनी का ऑपरेशनल एक्टिविटी होता है, तो ऐसी स्थिति में कई सारे टेक्निकल, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड, मैनेजरियल क्वालिफाइड, लीगल एडवाइजर्स, ब्रोकर्स की जरूरत होती है। तो अगर आपने कंपनी को सेवाएं दी है एज ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एज ए लीगल एडवाइजर एंड एक्सपर्ट, तो देन उसके बदले में आपका जो रेम्यूनरेशन होता है वो कंपनी आपको कैश पेमेंट भी कर सकती है, मतलब चेक से, बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकती है, या आपको कंपनी ऑफर दे सकती है कि आपका जो ये टेक्निकल एडवाइस है इसका जो 5 लाख रुपीज मूल्य होता है उसमें आप 1 लाख रुपीज कैश ले लो, मतलब बैंक के थ्रू ले लो, 4 लाख रुपीज का आप कंपनी के शेयर ले लो। इससे आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। कंपनी का जब भी लाभ होगा फ्यूचर में आपको डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी का प्रबंध संचालन अच्छा चल रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए आप कंपनी के जो है ना मेंबर बन जाएंगे, कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाएंगे, कंपनी का मैनेजमेंट का, डिसीजन मेकिंग टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो जो इंजीनियर्स है, लीगल एडवोकेट एडवाइजर है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, वो कंपनी के सेवाएं देकर सेवाओं का शुल्क जो है अंशों के रूप में ले लेते हैं। इससे वो स्वतः ही उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे। नंबर 4, एप्लीकेशन अलॉटमेंट थ्रू सेल ऑफ एसेट्स टू कंपनी थ्रू रेंटरिंग सर्विसेज और एज अंडरराइटिंग कमीशन। एज अंडरराइटिंग कमीशन अगर आप किसी कंपनी के, नई कंपनी के शेयर को मार्केट में बिकवाने का गारंटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं, तो इसके बदले में कंपनी आपको एक सर्टेन रेट से कमीशन देती है और वो कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन कहलाता है। एज पर कंपनी लॉ, whenever a new company issue its share to the public, then it is essential that within 2 or 3 days of subscription of shares, 90% of the total share issued by the company should have been subscribed or purchased, applied for purchase by the public. If not, then all the legal formalities that you have performed regarding bringing a company into existence will be null and void. कंपनी अधिनियम में ये प्रावधान है कि जब भी एक नई कंपनी किसी अंशों का निर्गमन करने जाती है तो उसे 2 या 3 दिन मिलते हैं अपना इशू ओपन रखने का, और अगर उन 2-3 दिन के अंदर जितने शेयर आपने इशू करे उसका 90% तक शेयर एप्लीकेशन पब्लिक से नहीं आई तो आपने कंपनी की स्थापना के लिए जितने भी फॉर्मेलिटीज किया है वो सारी बेकार हो जाएगी। तो देयर इज ए प्रेशर ऑन द कंपनीज, promoter and first director to get the issue successful in the market. तो दूसरी तरफ कंपनी को ये राइट भी है, अगर कोई कंपनी जिसे ये लगे कि उनके शेयर 200 करोड़ के शेयर 3 दिन के अंदर बाजार में नहीं बिक पाएंगे तो वो किसी ऐसे जो फाइनेंसर है, ब्रोकर है, उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर
को अंडरराइट करिए, अभी ओपन कर लीजिए। अगर हमारे शेयर 3 दिन में नहीं बिकते हैं तो जो शेयर अप्लाइड नहीं होंगे हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक वो आप खरीदोगे। अगर आप हमें ऐसा आश्वासन दे देते हैं तो हम आपको 2% उस पर कमीशन देंगे। तो ये अंडरराइटिंग कमीशन कहलाता है। तो ऐसी कई सारी अंडरराइटिंग फर्म्स होती है, अभिगोपन फर्म होती है जो व्हाट इज अंडरराइटिंग? अंडरराइटिंग इज इंश्योरेंस ऑफ कंपनी इशू ऑफ शेयर। It ensures the company that its share will be subscribed and certainly the company will be established. If the public will not subscribe the share, required number of share, then these underwriter will purchase the share and will direct the way for establishment of the company. तो वो अंडरराइटिंग कमीशन, अभिगोपन कमीशन के रूप में भी एक कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हैं अगर आपने अंडरराइटर के रूप में काम किया। Next, through right of inheritance, through right of inheritance, उत्तराधिकार में मिले विषय right of inheritance, INHE inheritance, उत्तराधिकार में मिले शेयर, यानी कि अगर आपके ग्रैंडफादर के नाम में किसी कंपनी के शेयर है और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो शेयर आपके फादर के नाम ट्रांसफर होते, क्योंकि जो भी उनका नॉमिनी होता है वो शेयर उसके नाम में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। अगर किसी के फादर के नाम से किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए और फादर की अगर डेथ हो जाती है तो वो कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करता है, तो कंपनी उसके फादर का नाम कैंसिल करके उसकी जगह उसका जो लीगल एग्जीक्यूटर है, सन है या वाइफ है, उसके नाम से वो शेयर ट्रांसफर कर देती है। इसलिए उसको बोलते हैं एज ए राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार में मिले शेयर। नेक्स्ट, वन मोर मेथड इज स्वेट इक्विटी शेयर, SWEAT, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे अंश जो एक कंपनी द्वारा अपने संचालकों और कर्मचारियों को, जिनको की बड़ी अमाउंट सैलरी के रूप में, रेम्युनरेशन के रूप में दी जाती है हर महीने, और कंपनी के पास इतना पैसा लिक्विड फॉर्म में नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर को सैलरी का पेमेंट कर सके, तो ऐसी स्थिति में वो नगद धन के बदले में, नगद राशि के बदले में उनको शेयर दे सकते हैं। तो ऐसे शेयर स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। तो नाउ वी कैन से स्वेट इक्विटी शेयर आर सच शेयर्स विच आर इशूड बाय ए पब्लिक कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स अगेंस्ट देयर रेम्युनरेशन in case of problem of liquidity with the company। तो स्वेट इक्विटी शेयर से भी आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। पहले आप उस कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉय थे मात्र और सैलरी उठा रहे थे, लेकिन कंपनी के पास इतना बड़ी अमाउंट हर महीने सैलरी की देने के लिए नगद में नहीं था, तो कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिस बियरर आपको ये ऑफर देते हैं कि आप ये शेयर ले लो कंपनी के आधे, और आधे रुपये हम लोग रोकड़ में देते हैं, और आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके लिए वो शेयर स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। और इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई कंपनी का शेयर होल्डर भी बन जाएगा, और शेयर होल्डर बनने के कारण उसको सारा इंटरनल मैनेजमेंट का भी नॉलेज हो जाएगा, कंपनी की मीटिंग्स में भी भाग ले सकेगा, कंपनी के जो एक्सपांशन के, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका उसको पूरा नॉलेज रहेगा, और वो एम्प्लॉय के रूप में सैलरी प्राप्त करता रहेगा और ऑनर ऑफ द शेयर के रूप में कंपनी का प्रॉफिट में, डिविडेंड में हिस्सा प्राप्त करने का भी अधिकारी बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनने के अलग अलग मेथड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोड ऑफ पेमेंट ऑन शेयर। मोड ऑफ पेमेंट, भुगतान के कौन कौन से तरीके हैं। मोड ऑफ पेमेंट, अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका वो पैसा शेयर होल्डर से, सॉरी एप्लीकेंट से लेती है। अब वो पैसे, अगर एक 100 रुपए का शेयर है, आपको 100 शेयर खरीदना जरूरी है, तो 100 × 100 आपको 10,000 रुपीज
एक साथ भी देना पड़ सकता है, तो पेमेंट इन लम्प सम कहलाएगा। और कोई 10,000 रुपये एक साथ नहीं देना चाहता है, तो कंपनी मार्केट सिचुएशन को देखते हुए ये ऑफर देती है कि ऐसे तो एक शेयर 100 रुपये का है और आपको 100 शेयर कम से कम खरीदना होता है, जरूरी है, और वो शेयर सर्टिफिकेट टोटल आपका जो है ना 10,000 रुपीज का होगा, तो 10,000 में से आपको है ना अभी 2,000 ही देना है एप्लीकेशन मनी का। फिर जब आपका अलॉटमेंट हो जाए तब आपको बाकी के शेयर का पैसा देना पड़ेगा। जब अलॉटमेंट मनी देनी पड़ेगी तो दूसरी किस्त हो जाएगी वो। तो दो मेथड है देखो। नंबर 1 इज पेमेंट इन लम्प सम। पेमेंट इन लम्प सम, यदि एक कंपनी अपने शेयर की टोटल वैल्यू आवेदकों से, एप्लीकेंट से पूरी एक साथ लेती है और एक साथ बैंक में जमा कराने के साथ, एप्लीकेशन मनी के साथ जमा कराने का बोलती है, तो वो पेमेंट इन लम्प सम कहलाएगा। हिंदी में बोलते हैं एक मुश्त भुगतान। 100 शेयर एक कंपनी का खरीदना जरूरी है, कम से कम मान लीजिए, और एक शेयर 100 रुपये का है, तो एक एप्लीकेंट को 10,000 रुपये पूरे एक साथ देने पड़े, तो वो कहलाएगा पेमेंट इन लम्प सम, एक मुश्त भुगतान। लेकिन ये तभी संभव होता है जब कंपनी में, जब बाजार में, फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉपर लिक्विडिटी हो, लोगों के पास खूब सारा पैसा हो और कई लोग शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो और कंपनियों की परफॉर्मेंस और इमेज है ना मार्केट में अच्छी हो, तब तो ऐसा किया जाएगा, तो भी कंपनी के शेयर सक्सेसफुल इशू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी इंडिया में कई लोग शेयर, कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी की कमी है। तो ऐसी स्थिति में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी को अपने शेयर को इशू करने के लिए, अपने इशू ऑफ शेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक मुश्त भुगतान की बजाय किस्तों में भुगतान ऑफर किया जाता है। तो दूसरा है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत एक कंपनी अपने शेयर के टोटल वैल्यू को एक साथ नहीं लेकर 3, 4 या 5 किस्तों में वसूल करती है, तो उसे हम किस्तों में भुगतान बोलते हैं, पेमेंट इन एन्युटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 शेयर का 100 रुपीज के हिसाब से अगर किसी को 10,000 रुपीज एक साथ नहीं देना है, तो वो कुछ रुपए एप्लीकेशन मनी, क्योंकि आप शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसको एप्लीकेशन मनी के रूप में दे दो, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए। तो कंपनी के अंशों के आवेदन के साथ जो पैसा देना पड़ता है वो एप्लीकेशन मनी कहलाता है। उसके बाद में अलॉटमेंट मनी, जब आपको शेयर अलॉट हो जाए तो वो अलॉटमेंट मनी हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जब कंपनी को और जरूरत हो तब वो फर्स्ट कॉल मनी कहलाएगा, और उसके कुछ समय बाद में कंपनी सेकंड कॉल मांग सकती है, थर्ड कॉल मांग सकती है। तो इस तरह से कंपनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट